A is a subset of another set, not only real number, but we can say that sometimes A is any set. But because I will teach the only real analysis, so I am saying that A is a subset of R, and a function f A to R, a function f such that A to R and a point C belongs to A. A function is called a function is said to be continuous, is said to be continuous at x tends to C. If, now important, if for every epsilon greater than 0, this word for every is very important word, so I will take another color. For all epsilon greater than 0, there exists delta. There exists delta greater than 0. There exists delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of c whole mod is there. Epsilon whenever mod of x minus c less than delta, but for all x belongs to A. This is the definition. I am saying that a function is a continuous at any point at C, and C belongs to A. C is the element of the domain. A function is a continuous at a C, meaning is this for all epsilon greater than 0. This is your choice. You can given any epsilon, whenever I will find the delta and that definition is hold, then f is called continuous at a C. F is called continuous at C. So this is the first definition. But हम लोगों ने 12th में एक और definition पढ़ी है, हम सबसे पहले उसको भी लिखते हैं. So अगर हमारे पास ऐसा हुआ कभी भी किसी भी फंक्शन के लिए f of x minus f of c, तो आप x पुट करते जाइए इस इंटरवल में c माइनस डेल्टा. दिस इज इंटरवल है जो कि c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा है. ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल में कहीं से पॉइंट लीजिए और f of x f of minus c लेस देन हमेशा एप्सिलॉन हो. मतलब एप्सिलॉन आप दीजिए मुझे f of x minus c, देन किसी भी एप्सिलॉन के लिए अगर मुझे x minus c डेल्टा मुझे मिल जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन इस पॉइंट पे c पॉइंट पे कंटीन्यूअस है. अच्छा, कंटीन्यूटी की डेफिनेशन हम लोगों ने दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी है. दिस इज डेफिनेशन नंबर 1. Definition 1, but this definition is important definition. But definition 2, the 12th standard definition. Definition 2 जो लोग हम पढ़ के आए हैं definition 2 में 12th में वो देखते हैं. हम लोग क्या पढ़ के आए? हमने कहा था कोई भी फंक्शन f is continuous at a c. f is continuous at c if left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function that point f of c. So if the definition is hold, this definition is hold, then again I am saying that function is continuous at c. So function is continuous at c. So I think you forget the left hand limit and the right hand limit. So what is left hand limit? I will write again. Left hand limit. See the left hand limit, because many questions you can solve by left hand limit, right hand limit equal to function of the value at that point. So what is left hand limit? Left hand limit is nothing special. Given any function f, and I will check the limit at a, and first you can move the left some h distance. So limit notation is x tends to a minus f of x. This is left hand limit, but this you can write limit x tends to a minus h
and s tends to 0, f of x. Now you can write the limit f of x replaced with a minus h. A minus h, but h tends to 0, but h is a greater than 0. Positive quantity है but tends to 0 है h. So a minus h. So this is the left hand limit. Similarly, right hand limit. So right hand limit is given. Right hand limit also, or you can write the limit h tends to 0 in the same manner. F of a plus h. So whenever left hand limit, right hand limit is equal to function of value, then function is called continuous at c. अगर c पे चेक कर रहे हैं तो c हमने a लिखा है तो यहाँ पे हम a लिख देते हैं. तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इस एट a पॉइंट. तो कभी कभी क्या होगा, कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस डेफिनेशन से, जो कि हमारी डेफिनेशन नंबर 2 हुई. सो डेफिनेशन 2 भी हम कई बार अप्लाई करेंगे, जहां मुझे लगेगा डेफिनेशन 2 से हम अप्लाई करके क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं, तो हम पहले डेफिनेशन 2 अप्लाई कर लेंगे. अगर मुझे लगता है नहीं डेफिनेशन 2 नहीं, हम डेफिनेशन फर्स्ट से अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन है, वो दिया हुआ क्वेश्चन हमारा एप्सिलॉन डेल्टा से सॉल्व हो रहा है या डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से, तो हम वैसा ही वर्क करने लगेंगे. तो मुझे लगेगा कि हमें एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई करना है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. कई क्वेश्चन है जो कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से लग जाते हैं, तो हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे. तो हमारा पहला टारगेट डेफिनेशन 2 पे ही होगा. Firstly, we will check we can apply the left hand limit right hand limit equal to function of that point. If you not apply, we will apply the definition number 2, because जब definition 1 फेल हुई, definition 2 फेल हुई, तब definition 1 की जरूरत पड़ी. हमने अपोजिट लिखी है, पहले definition 2 आई है. तो definition 2 जब फेल हुई, कई क्वेश्चन ऐसे हुए जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, कई चीजें बता नहीं सकते थे, कई एनालिसिस नहीं बता सकते थे कंटिन्यूअस फंक्शन की, तब हम डेफिनेशन 1 में गए. तो डेफिनेशन 1 हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई की, तो हमने देखा कई चीजें जो कि हम यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा. उस डेफिनेशन ने मुझे ये सिखा दिया कि नहीं, ऐसा हम अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ definition third, but definition third and definition 1 is the same. तो definition third definition 1 को ही हम आगे बढ़ाएंगे और देखो कहां पे ले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. वो भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होगी या नेबरहुड डेफिनेशन कह सकते हैं. सो एनबिट डेफिनेशन हम लिखेंगे थर्ड वन. तो थर्ड डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर थर्ड, डेफिनेशन थर्ड. हाँ अर्जुन, कोई डाउट अभी तक? definition 1, definition 2, definition 3? No. Okay, now definition number 3. Definition number 3 is a neighborhood definition. You can write the neighborhood definition. But definition 1, definition 3 both are same. कोई भी अंतर नहीं है पहली और थर्ड में. हम उसका केवल न्यू वर्जन लिखेंगे, उसे हटा के कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे आ गया. सो अगर हम उस definition को ऐसे लिखना चाहे, because definition is saying that function f is continuous at a c, f is continuous at x tends to c or a. You can write any point here. If you know that for all epsilon greater than 0, here exists delta greater than 0, such that mod of f of x minus f of c mod less than epsilon whenever x minus c less than delta for all x belongs to capital A. Now because we can write the definition is minus epsilon less than f of x minus f of c less than epsilon whenever minus delta x minus c plus delta. So the definition you can write f of c minus epsilon less than f of x less than f of c plus epsilon.
So C minus delta less than X less than C plus delta. So this implies f of X belongs to f of C minus epsilon, f of C plus epsilon. Whenever X belongs to C minus delta, C plus. Now, because this is an open neighborhood, this is again we can write the neighborhood. So f of X belongs to, say that n epsilon f of C. Nothing is special. Epsilon neighborhood of f of C. You can write this is again delta neighborhood of C. It's the same thing. You can write in this way. You can write in this way. Meaning is, now given any epsilon neighborhood, if I'm saying that f is a continuous, now see the definition third. So how would I definition third? So I'm again saying that definition 1 and definition third, both are same. But I'm saying that the given epsilon neighborhood of the f of C, there exists delta neighborhood of f delta neighborhood of the C. So how we'll say that there exists delta neighborhood of C? Such that if X belongs to a intersection of the n delta of C, implies f of X belongs to n epsilon f of C, that is f of n epsilon f of C is a subset of the n delta f of C, n delta f of C is a subset of the n epsilon f of C. So by language we can write definition third. If f is a continuous, now I will write the definition third. See the definition third. If f is, if say that f is continuous at X tends to C, if, now definition, for given any epsilon neighborhood, any epsilon NBD of f of C, there exists delta neighborhood of C such that f of n delta of the C, that is again said this is subset of n epsilon f of C for all X belongs to a intersection n delta of the C. इस डेल्टा नेबरहुड के इनसाइड ही एक्स रहना चाहिए. उसके लिए अगर ये डिफिनेशन होल्ड कर जाती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया. सो से दैट फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस. सो ये दिस इज माय थर्ड डेफिनेशन. थर्ड डेफिनेशन इज दैट. तो हमने क्या कहा? हमने कहा अगर कभी भी कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड हो, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी, कोई भी एफ ऑफ सी का एप्सिलॉन नेबरहुड हो, अगर मुझे डेल्टा नेबरहुड सी का मिल जाता है उसके रिस्पेक्ट में, कैसे कि n डेल्टा सी, जो भी डेल्टा सी का वैल्यू हो वो अगर हम पुट करते हैं ना, नॉट अ डेल्टा सी बट और अच्छे से लिखना चाहो तो हम ए इंटरसेक्शन डेल्टा सी लिख सकते हैं. यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख लेना, ए इंटरसेक्शन डेल्टा सी, राइट, ए इंटरसेक्शन डेल्टा सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ द डेल्टा सी. ए इंटरसेक्शन डेल्टा सी कोई भी डोमेन का एक इंटरवल होगा कोई ना कोई, उस इंटरवल के लिए जो इमेज हो वो सबसेट हो जाए n एप्सिलॉन f ऑफ c की. अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे फंक्शन एट अ c पे, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट का डेल्टा नेबरहुड ले रहे हैं उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा. लेकिन हर एक एप्सिलॉन के लिए, अगर आप इससे छोटा एप्सिलॉन कर रहे हो तो डेल्टा हो सकता है बड़ा मिले या छोटा मिले, लेकिन मिलना चाहिए. अगर किसी भी ऐसे एप्सिलॉन के लिए जिसके लिए डेफिनेशन होल्ड नहीं करती हो, किसी पर्टिकुलर एक एप्सिलॉन के लिए, तो हम कहेंगे सी पे कंटीन्यूअस नहीं है. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि डेफिनेशन मुझे देखनी है फॉर ऑल एप्सिलॉन, नॉट ओनली वन डेल्टा. आई एम सेइंग दैट फॉर अ गिवन एनी एप्सिलॉन.
कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड हो, चाहे हम छोटा नेबरहुड दे चाहे बड़े से बड़ा नेबरहुड लेंगे, उसके लिए मुझे डेल्टा नेबरहुड मिल जाना चाहिए जिसके लिए इमेज ऑफ ए डेल्टा एफ ऑफ सी की सब्स्टिट्यूट हो जाए उस एप्सिलॉन नेबरहुड की। सो यू कैन सी दैट बाय फिगर। So see that x-axis, x-axis, y-axis. So I am saying that given any function, this is the function, this is f of x, f of x. Here I am saying that C is a point. Say that A is here. A is that one, and C is a point of the dome. Now हम कहते क्या है, हमने कहा अगर C है तो f of C यहाँ होगा इसके रिस्पेक्टिव f of C। अब जब मुझे f of C मिल जाए रेंज में, तो हम ये कह रहे हैं कि f of C के लिए कोई भी नेबरहुड, चाहे कोई एप्सिलॉन नेबरहुड हो, से दैट दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड, दिस इज n एप्सिलॉन f of C। अब चाहे यहाँ पे बड़ा से बड़ा नेबरहुड हो, चाहे छोटे से छोटा नेबरहुड हो, हमने कहा हमने कोई भी f of C का नेबरहुड लिया तो मुझे C का f of C का नेबरहुड गिवन है, आप दे दो मुझे, मैंने कहा अगर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा है उसके लिए C का एक नेबरहुड मिल जाना चाहिए। दिस इज n डेल्टा ऑफ द C का एक नेबरहुड ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए अगर हम फंक्शन की इमेज लिखे इस नेबरहुड पे, फंक्शन की इमेज ए डेल्टा इसीलिए कर दिया क्योंकि ये बड़ा नहीं, इसके इनसाइड ही लिखते रहे, तो ए डेल्टा एफ ऑफ सी के लिए अगर उसकी इमेज, अगर हम इसकी इमेज सेट लेते हैं ए इंटरसेक्शन एन डेल्टा सी और उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर इसकी जो इमेज लेते हैं, जो इमेज आए, जो भी इमेज की वैल्यू आए, जो भी सेट की वैल्यू आए, वो हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट हो जाए हमेशा किसकी, एन एप्सिलॉन एफ ऑफ सी। अगर ऐसा हो गया कि मान लो तुमने कहा एप्सिलॉन हमने दिया और इसके लिए हमें इसकी इमेज सेट मैंने निकाला है, ऐसा एक डेल्टा मिलना चाहिए, तो हमने कहा डेल्टा मुझे ऐसा मिल गया छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा जो कि इसका सब्स्टिट्यूट हो जाए। अगर इसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। सो फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस। सो इसको इस टाइप से बना चाहिए। बताइए समझ में आया? कुछ समझ में आया? सर ये डेफिनेशन क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे? करेंगे टेंशन का सब करें, है ना? देखते हैं कैसे करेंगे। एक्स वाई पर डेफिनेशन बताओ कोई प्रॉब्लम, बाद बाकी क्वेश्चन में कैसे करेंगे। डेफिनेशन तो आ गया समझ में। ठीक है, क्वेश्चन में पहुंचेंगे। हाँ बताइए, कोई भी डेफिनेशन में डाउट? अर्जुन कोई डाउट? अर्जुन? नो सर। ओके नाउ, जब क्या हुआ कि ये जो डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 और डेफिनेशन 3, कई क्वेश्चन ऐसे आए जो ये सब फेल कर गए। हम डेफिनेशन 1 भी अप्लाई नहीं कर सकते थे, डेफिनेशन 2 भी अप्लाई नहीं कर सकते थे, डेफिनेशन 3 जो नेबरहुड की डेफिनेशन है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो कई क्वेश्चन ऐसे आए जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। ये चेक करना इम्पॉसिबल था कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो डेफिनेशन 4 आई। डेफिनेशन 4 ने क्या कहा देखते हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन चलेंगे। डेफिनेशन 4, क्योंकि हम चारों डेफिनेशन बता दे रहे हैं, इसके बाद हमें जो जैसा लगेगा, मुझे लगेगा कि ये डेफिनेशन होल्ड करनी चाहिए तो ये डेफिनेशन लगाएंगे, लगेगा डेफिनेशन 4 अप्लाई करनी चाहिए तो 4 अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन 4 ने क्या कहा, जब कई क्वेश्चन ऐसे फंस गए जिससे हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते थे फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे, इन सभी डेफिनेशन से
तो फिर एक और डिफिनीशन हमारे सामने आई, और वो डिफिनीशन कौन सी? वो डिफिनीशन है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन पर्पज ऑफ द नेट एंड JRF. Sequential criteria. Okay, sequential criteria. Again, important definition. This definition saying that if A is a subset of the R, otherwise the total definition is let A be the subset of the R if such that A to R be the function and C belongs to A, comma F is continuous at X tends to C if again, because this epsilon delta is very important. So again, for every sequence xn belongs to A, for all n belongs to natural number. हम कह रहे हैं कोई भी सीक्वेंस, फॉर ऑल सीक्वेंस, जितने भी सीक्वेंस हैं xn इन A फॉर ऑल n belongs to natural number, such that ऐसे सीक्वेंस जो xn उस C पे कन्वर्ज करते हो। देखिए सबसे पहले आप सीक्वेंस की चीजें आपको आनी चाहिए। कभी भी कोई रियल नंबर दिया हो, कोई भी रियल नंबर दिया हो, हमने कहा किसी भी रियल नंबर के लिए कितने सीक्वेंस हो सकते हैं जो कि A पे कन्वर्ज करें। मान लो स्मॉल a हमारे पास पॉइंट है, a = 1 ले लो, तो ऐसे सीक्वेंस कितने हो सकते हैं जो 1 पे कन्वर्ज करें रियल नंबर में? हाउ मेनी सीक्वेंसेस? हाउ मेनी सीक्वेंस कन्वर्ज टू द 1? 1 2 3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस हो सकते हैं, क्योंकि 1 के लिए हो सकता है कि 1 1 1 1 कांस्टेंट सीक्वेंस हो सकता है जो 1 पे कन्वर्ज करे। अच्छा, 1 के लिए 1 + 1/n हो सकता है, 1 + 1/n + 1 हो सकता है, 1 + 1/n स्क्वायर हो सकता है। सो इनफाइनाइट सीक्वेंस रियल नंबर में ऐसे हो सकते हैं जो कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज करें। अच्छा, यहाँ भी ऐसा हुआ, अगर A हमारा डोमेन है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो यहाँ हो सकता हो एक सीक्वेंस हो, 2 सीक्वेंस हो, 3 सीक्वेंस हो, या इनफाइनाइट सीक्वेंस हो सकते हैं xn जो C पे कन्वर्ज करेंगे। हम उन सब के लिए बोल रहे हैं जितने भी सीक्वेंस A में ऐसे हैं जो C पे कन्वर्ज करते हैं, ऐसे सीक्वेंस जो कि C पे कन्वर्ज करते हैं, अगर ये सभी सीक्वेंस इंप्लाई कर जाए कि f ऑफ xn, अगर f ऑफ xn इमेज का सीक्वेंस निकाल लो, ये xn रियल नंबर का सीक्वेंस था, f ऑफ xn भी रियल नंबर का सीक्वेंस होगा, लेकिन xn जो है A में होगा, xn भी रियल नंबर सीक्वेंस है, f ऑफ xn भी रियल नंबर सीक्वेंस होगा, क्योंकि इमेज का सीक्वेंस होगा। जो भी इमेज का सीक्वेंस होगा, अगर वो f ऑफ C पे कन्वर्ज कर जाता है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस। सिंपल, हम कह रहे हैं कि गिवन एनी एक्शन इन A, बट डोमेन में, डोमेन के इनसाइड ही सीक्वेंस निकालना है, बाहर नहीं निकालना है। ऐसा सीक्वेंस नहीं लेना है जो डोमेन के बाहर का सीक्वेंस हो। हम कह रहे हैं सीक्वेंस जितने भी डोमेन के इनसाइड ऐसे सीक्वेंस हैं जो उस C पे कन्वर्ज करते हो, तो हमारे लिए f ऑफ xn भी f ऑफ C पे कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया हर सीक्वेंस के लिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस होगा C पे। लेकिन क्योंकि हमने आपको ये बताया कि किसी पॉइंट पे सीक्वेंस जो है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हो सकते हैं जो C पे कन्वर्ज करेंगे, बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, वी कैन फाइंड such all infinite sequences and going to the C. So how we'll apply the definition and see that after some time. But this definition is very important for the, if sequence is not converted, sequence is not a continuous sequence, as a function is not a continuous at a C, because अगर हमारे पास कभी भी कोई भी एक सीक्वेंस ऐसा मिले जो C पे कन्वर्ज करे और f ऑफ xn इनफाइनाइट पे चलता चला जा रहा हो, तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस नहीं होगा। मान लो अगर हमने सीक्वेंस ऐसा एक ले लिया जो xn जो है C पे कन्वर्ज करता हो, मैं C पे चेक करना चाहता हूं कि फंक्शन C पे कंटीन्यूअस है कि नहीं है, उनके लिए f ऑफ xn टेंड टू इनफाइनाइट हो जाए, तो सीक्वेंस कंटीन्यूअस नहीं होगा। या फिर हम दूसरे वर्डों में कहें कि गिवन एनी टू सीक्वेंसेस, से दैट xn and yn,
xn converges to c, yn converges to c. But f of xn and f of yn converge to different limits. Then again I am saying that this sequence, this function is not continuous at a c, particular c. So the definition we will apply for the discontinuity function. डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है जो कि डेफिनेशन होल्ड नहीं करता है तो हम उसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं. तो डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया के लिए हम इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से यूज करेंगे. तो कैसे यूज करेंगे? सी दैट नोट 1, if f of xn tends to c but f of xn tends to infinite, then f is not continuous at x tends to c. Okay. Note 1. Now see that note 2. If xn and yn converge to c, but f of xn converge to L1 and f of yn converge to L2 and L1 not equal to L2, then implies f is not continuous at. ओके, समझ में आया क्या है इस नोड 1 नोड 2 में? हमने कहा कोई सीक्वेंस अगर यहाँ L1 और L2 दोनों इक्वल आ जाए तो क्या कहोगे? If sometimes both L1 and L2 both are same, then what can you say about that function f is? Can you say that anything about the function by definition? If sometimes I am saying that L1 and L2 equal to L1 and equal to L2, then can you say that anything about that function is continuous or not? Or you cannot say that anything about function? Tell me. नो सर, कुछ नहीं कह सकते. कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे लिए जितने सीक्वेंस हो वो सभी कन्वर्ट करते हो तो हम कहेंगे. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया ऐसा जो कि L1 और L2 बराबर हो गए तो हम यहाँ से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं. लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो पक्का डिसाइड कर देंगे कि फंक्शन हमारे लिए कंटीन्यूअस नहीं होगा. जैसे नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3, डेफिनेशन 4. एनीवन एनी डाउट? No, sir. Okay. Now see that example number 1. Example 1. हमारे लिए कोई फंक्शन है जो कि R से R में डिफाइन, और फंक्शन है f of x equal to 1 1 minus 1. Sometimes 0 or minus 1 or 0 1 भी लिखते हैं, but this type of function is called the Dirichlet function. X belongs to Q and x does not belongs to Q, or x belongs to QC, ये रेशनल नंबर. ओके, यहाँ पे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है. x belongs to Q है और x belongs to -1. अब देखिए इस क्वेश्चन में जब इसकी कंटिन्यूटी देखी गई कि यहाँ पे टोटल r है तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे पूरे रियल नंबर में. तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट इन द रियल नंबर और नॉट. ओके, हमारे पास कंटिन्यूटी चेक करनी है ना. सो चेक द कंटिन्यूटी ऑन r. चेक कंटिन्यूटी ऑन r. नाउ विल चेक द कंटिन्यूटी ऑन r. r पे कंटिन्यूअस, r के किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या टोटल r पे कंटिन्यूअस फंक्शन है.
तो आर हमारा जो आर है वो डिवाइड दो पार्ट में होता है, कैसे, क्यू में और क्यूसी में, बिकॉज अ रियल नंबर कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ आर कैन बी रिटन एज क्यू यूनियन क्यूसी, क्यू यूनियन क्यूसी। सो आर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्यू यूनियन क्यूसी। अच्छा, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम पहले इसको डिवाइडेशन से चेक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे Q में वैल्यू दी है 1 और C में दी वैल्यू -1। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि Q और QC के अलग अलग पॉइंट पे चेक किया जाए फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं। हमने बोला कि सबसे पहले हम केस 1 देखेंगे कि केस 1 में, लेकिन अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। पहले डेफिनेशन 1 अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से चेक करेंगे तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि रेशनल और रेशनलिटी ऐसे हैं कि कोडेंस है आपस में, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या होगा, कैसे हम चेक करें। दूसरा, आप सारे डेल्टा डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रेशनलिटी और रेशनलिटी अलग अलग हो गई। तो हमारे पास एक ही आया, उसको हम अप्लाई करेंगे, और वो है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। हमने कहा लेट A belongs to Q, और हम A belongs to Q पे चेक करना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है फंक्शन। जो A है वो Q है, इस A पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अच्छा, हमने अगर आपसे ये बोला कि अगर A रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर पे हम चेक करना चाहते हैं, हमारा डोमेन क्या है, यहाँ डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन क्या है, आर। आर। तो आर में कितने ऐसे सीक्वेंस होंगे जो ए पे कन्वर्ज कर रहे होंगे। ए मतलब रेशनल है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये रेशनल है तो रेशनल नंबर में इनफाइनाइट सीक्वेंस ऐसे रियल नंबर के होंगे जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहे होंगे। ये बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, लेकिन एक बात और कि ऐसे सीक्वेंस केवल इरेशनल नंबर ऐसे सीक्वेंस होंगे, इरेशनल नंबर के ऐसे सीक्वेंस होंगे जो इस ए पे कन्वर्ज कर रहे होंगे। ऐसा हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें जो रेशनल सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहे होंगे उनसे मतलब नहीं है, वो तो कन्वर्ज कर रहे होंगे तो दोनों तरफ सेम आ जाएगा। अगर हमने कहा एक्सएन रेशनल है, ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्सएन भी एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज कर रहा होगा। इसलिए हम उन सीक्वेंस को छोड़ देंगे, उनको चेक नहीं करेंगे, हम उनको चेक करेंगे जिनसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ऐसे बहुत से इरेशनल नंबर के सीक्वेंस होंगे रियल नंबर में जो ए पे कन्वर्ज कर रहे होंगे। ये बात समझ में आई? हाँ सर। यस। कोई अच्छा एक सीक्वेंस ऐसा बताओ, मान लो अगर मैंने ए ले लिया, a इक्वल टू 1 ले लिया, 1 रेशनल नंबर है, तो मुझे इरेशनल नंबर का एक सीक्वेंस ऐसा बताओ जो 1 पे कन्वर्ज कर रहा हो। एक बताओ पहले, जिससे हम ये समझ पाए आप लोग डिसाइड कर पाए हो कि नहीं बताया। इरेशनल नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस बताओ जो 1 पे कन्वर्ज कर रहा हो। यस, टेल मी any one sequence, because I am saying that one number of sequences converge to the one, but can you say that any one sequence converge to the but sequence, all the term of the sequence is a irrational number. बोलो भाई। 1 + 1 अपॉन रूट n। रूट n, अगर रूट n जब n हमारा वो होगा 4 टाइप का, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 मतलब अगर रूट 4 करोगे 2 आ जाएगा ना, तब रेशनल हो जाएगा। रेशनल तो नहीं रहेगा। 1 + 1 अपॉन रूट p। हाँ, 1 अपॉन 1 प्लस रूट p, वेयर p इज अ प्राइम, या फिर अगर आपने n कहा था तो n इज प्राइम कंडीशन होनी चाहिए। अब कभी नहीं आएगा, या आर ले लो यहाँ पे तो नहीं आएगा रूट के बाहर कभी, तब ये रेशनल नंबर रहेगा। समझ पाए हो? अगर यहाँ n कर देते हैं तुम्हारे फॉर्म में तो n बिलोंग्स टू प्राइम। n इज प्राइम। आप समझ में आया? और ये ऐसा सीक्वेंस है जो 1 पे कन्वर्ज कर, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस होंगे जो 1 पे कन्वर्ज कर रहे होंगे, लेकिन सीक्वेंस का हर एक पॉइंट इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि हमारी जो जरूरत है इस डेफिनेशन में, जरूरत है कि रेशनल वाली जरूरत नहीं है कि जो रेशनल कन्वर्ज करें रेशनल पे, हमारी जरूरत है इरेशनल कन्वर्ज करें रेशनल पे। उससे हम कंट्राडिक्शन में आ जाएंगे। देखो, जिसने डेफिनेशन पहले अप्लाई की होगी उसने सबसे पहले
इरेशनल देखे होंगे कि रेशनल रेशनल पे कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर देखा होगा इरेशनल रेशनल पे अगर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रही थी। कैसे? उन्होंने कहा कि लेट नाउ xn belongs to QC such that, अब हमने कहा सच दैट ऐसे इरेशनल सीक्वेंस जो xn कन्वर्ज टू a, ये तो लेना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना है क्योंकि xn टेंड्स टू a उस डोमेन में r है, डोमेन r के डोमेन में xn बिलोंग कर रहे हैं, QC है तो QC r में, तो QC सबसेट ऑफ r है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने r में ही लिया है। xn बिलोंग्स टू r, हमने लिखा था xn बिलोंग्स टू a, बट कैसे? जो xn a पे कन्वर्ज कर रहे हैं, हमने कहा ऐसे हैं जो xn QC में है वो xn a में है, लेकिन बट व्हाट इज f ऑफ xn? What is f of xn? Or are xn going to the rational or rational point? So f of xn going to the, let's see that definition. If x belongs to QC, then f of xn going to the, अरे बोलो यार, -1 -1. So -1 -1 सीक्वेंस होगा, तो f of xn कन्वर्ज करेगा -1 पे, बट एंड f of a क्या होगा? 1. That is f of xn does not converge to f of a. f of a कन्वर्ज नहीं किया, इसके मतलब जो a पॉइंट है, रेशनल नंबर कोई भी पॉइंट पे ये फंक्शन रेशनल नंबर के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि हमने जनरल रेशनल नंबर लिया था। तो हमने ये चेक किया इस केस 1 से कि अगर हम रेशनल लेते हैं कोई पॉइंट तो उस रेशनल पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। Got it? यस, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। केस 2 सेम डेफिनेशन, केस 2 सिमिलरली वी कैन अप्लाई, सिमिलरली लिखेंगे, बिल्कुल सिमिलरली लिखना, जैसे वहां रेशनल लिखा तो रेशनल ले लेना। सिमिलरली a belongs to QC, function is not continuous, function is not continuous at h tends to C. इसके मतलब ना तो रेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना तो इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब डिरिचलेट फंक्शन f is not continuous on r के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये समझ में आया? ये इसमें डिरिचलेट फंक्शन ना तो रेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना तो इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। Got it? यस सर। बोलो, कोई डाउट हो बताओ। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास f r से r और यहाँ पे f of x हम डिफाइन कर रहे हैं, f of x इक्वल टू x0, ये कह रहे हैं x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू, ये मेरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मुझे चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी, है ना, चेक कंटिन्यूटी ऑन कंटिन्यूटी हमें कंटिन्यूटी आना चेक करनी है। ओके, सो ये तुम्हारे लिए HW है, मुझे कल करके ये दिखाना है। ठीक, एक बार अपना माइंड लगाइए और देखिएगा कि हम क्या करेंगे और